So the factors which affects the pulmonary ventilation are surface tension, compliance, and airway resistance, right? So in the last class, we have completed the first factor which affects the pulmonary ventilation, and that is surface tension. Now, how it affects the surface, how the surface tension affects, पूरा surface tension हमने पढ़ा, लेकिन वो ventilation को कैसे affect करेगा? How it affects the pulmonary ventilation. If surface tension is more, then what happened to pulmonary ventilation? Because in one line, if the question is asked, write a note on mechanics of pulmonary ventilation, and I said that at last, what you supposed to write is you have to write the factors which affects the pulmonary ventilation in 2 to 3 lines. So what you will write about the surface tension? Surface tension कैसे affect करता है pulmonary ventilation को? Brings water, collapse of lung. तो pulmonary ventilation का क्या होगा? Ventilation का क्या होगा? Ventilation is movement of air between the lung, alveoli of the lung and the atmosphere. So decreases, right? ठीक है? Surface tension, if the surface tension is more, the alveoli will try to collapse. There is more elastic force, and elastic force is inwardly directed force. Inwardly directed force. It means the alveoli try to collapse. So during pulmonary ventilation, if the surface tension is more, then muscle has to work more to overcome the resistance which is applied due to surface tension. Is it clear to all? ठीक है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा to overcome the elastic resistance, because surface tension it gives 2/3 of the elastic resistance. याद है ना? ठीक है, तो इलास्टिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? एंड ज्यादा सरफेस टेंशन होगा तो उतना एल्वेओलाई तुम्हारा साइज बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा. समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस इज the importance how the surface tension affects the pulmonary ventilation. ठीक है, तो हमने ये देखा था, सरफेस टेंशन पढ़ा था, फिर सर्फेक्टेंट पढ़ा था, ये हमने देख लिया था. यहाँ देखो सरफेस टेंशन provides elastic, right? So it is a major factor. Okay, so this is what we have learned the last class. So functions of the surfactant is it prevent the collapse, it promote the alveolar stability and prevent the pulmonary edema. कैसे करता है वो भी हमने देख लिया था. Even the importance of surfactant at birth हो गया था, infant respiratory distress syndrome हो गया था, ठीक है, और ये भी हो गया था, right? Infant respiratory distress syndrome. Now the जो provide करता है alveolar stability is maintained by two factors. One is सर्फेक्टेंट जो उसका फंक्शन है, ठीक है, सर्फेक्टेंट के 3 फंक्शन है. एक तो कोलैप्स नहीं होने देता है, एक पल्मोनरी एडिमा नहीं होने देता है, एंड द थर्ड वन इज इट मेंटेन द एल्वेओलर स्टेबिलिटी, right? So this is a major factor for maintaining the alveolar stability in newborn and infants. Now how it maintains the alveolar stability, can anyone tell me in a chat box? कैसे करेगा, स्टेबल कैसे करेगा? इसका आंसर यहाँ पर है. अगर नहीं, वाटर मॉलिक्यूल वो तो उसका फंक्शन ही है, ठीक है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है, प्रिवेंट कोलैप्स, लेकिन कैसे एल्वेओलाई को स्टेबल करेगा? ओके, और हिंट देती हूँ,
इस स्लाइड में है, हाईलाइट किया है. Yes, Surbhi is right. That lower surface area it reduces the surface tension in the smaller alveoli. Alveolar surface tension red color का दिख रहा है statement. Alveolar surface tension is inversely proportional to its concentration per unit area. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो कि स्मॉलर एल्वियोलाई जो है राइट हैंड साइड पर बी वाली फिगर, ठीक है, स्मॉलर एल्वियोलाई है तो वहां पर जो ब्लू कलर की डॉट है वो नजदीक आ गया है, यानी पर मिलीमीटर एरिया में द नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, यानी एल्वियोलाई को और कोलैप्स नहीं होने देगा. उससे उल्टा बी ही में लेफ्ट हैंड साइड की फिगर देखो कि जहां जब एल्वियोलाई बड़ी साइज का है तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल दे आर वाइड अपार्ट, यानी पर मिलीमीटर यूनिट एरिया सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल रिड्यूस, और अगर वो रिड्यूस होता है तो सरफेस टेंशन बढ़ा देता है. समझ में आया? तो सरफेस टेंशन अगर बढ़ जाएगा तो लंग का क्या हो जाएगा, लंग टुवर्ड्स अंदर की ओर खींचेगा. ठीक है, इस क्या है, it prevent the overstretching of the alveoli at the time of inspiration. समझ में आया? So कि alveoli, so the surfactant molecule it maintain alveolar stability. स्मॉलर है उसको वो कोलैप्स नहीं होने देता है स्मॉलर एल्वियोलाई को, और जो बड़ा एल्वियोलाई है उसको स्ट्रेच नहीं होने देता है. समझ में आ गया? Any question, any doubt in this? How this surfactant molecule maintain the alveolar stability? Yes or no? समझ में आ गया? Okay. So the second reason is there is a principle of interdependence. Interdependence is a mutual support among the adjacent alveoli because of their structural arrangement with many interconnecting links. यानी जो alveolar sac है वो alveolar sac किससे बना है? bunches of alveoli से. एक alveoli दूसरे alveoli के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक alveoli अगर बहुत खींच गया तो बाजू वाला alveoli उसको अपनी ओर खींच लेगा. ठीक है, तो म्यूचुअल सपोर्ट है इन alveolar sac. So this is also the factor which maintain the alveolar stability. So this is a function of the surfactant. तो ये हो गया तुम्हारा the third function of the surfactant. Now coming to the second factor which affects the pulmonary ventilation, and that is compliance. Now the compliance is, एक minute. Compliance refers to how much effort is required to stretch the lungs and the chest wall. When the lung is subjected to stretching force, lung expand. If the lung expand too easily, then the compliance is high. And if it expand with difficulty, then the compliance is low. ठीक है, तो अब भी easily कब expand होगा? Easily कब expand होगा? कि जब elasticity अच्छी है तो. ठीक है, और डिफिकल्टी कब होगी? जब इलास्टिसिटी उतनी नहीं है तो. ठीक है ना? So if it expand easily, then compliance is high. If with difficulty, then compliance is low. So the compliance is change of lung volume per unit change in a pressure, transpulmonary pressure. जितना ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज होता है उसमें लंग वॉल्यूम कितना चेंज होता है, that is what the compliance. Right? Normal value is 200 ml per centimeter of water. यानी 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज होगा तो 200 ml ऑफ एयर इधर अंदर आएगी या बाहर जाएगी. Right? This is what the compliance means. Now the factors which affect the compliance are factors within the lung. That is the first and the most important is elasticity of the lung. This is the most important बताया. Compliance क्या है? How easily lung expand. और how easily lung expand किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेजोरिटी इलास्टिसिटी पर. समझ में आया? Then other factors within the chest wall also.
चीजों किसके ऊपर, लंग की इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो चीजों, दो की वजह से लंग की इलास्टिसिटी होती है। नो, इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है? इलास्टिक फाइबर की वजह से। दूसरा, दूसरा, नो, कोलेजन फाइबर नहीं, इलास्टिक फाइबर की वजह से इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर्स लंग पेरेन्काइमा में होता है। उसके सिवा इलास्टिसिटी, मेजोरिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। वेरी गुड, ठीक है, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिक फाइबर्स। रुचा इज राइट। सरफेस टेंशन एंड इलास्टिक फाइबर्स, ये दो चीजों के ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। मैंने आगे बताया सरफेस टेंशन का 2/3 ऑफ द लंग इलास्टिसिटी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट, एंड बाकी की जो है 1/3 दैट इज ड्यू टू इलास्टिक फाइबर्स विद इन द लंग पेरेन्काइमा। सो elasticity of the lung. So first is elastic fibers that is around the lung alveoli and the bronchial tubes that is in the lung parenchyma, right? For example, in emphysema, where emphysema is a condition in which there is a damage of the air sacs occur, right? So air sacs जो होता है उसमें डैमेज होता है। जो इनर वॉल, सेप्टल वॉल है एल्वियोलाई की, एयर सेक्स किससे बना है? मल्टीपल एल्वियोलाई से, राइट। सो एल्वियोलाई की जो वॉल है अंदर की वो डैमेज हो जाती है, यानी एयर सेक्स क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एयर सेक्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो सरफेस टेंशन की वजह से इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, वो भी तो ये हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। यानी जो एल्वियोलाई छोटा छोटा है वो पूरा सेक एक बड़ा कैविटी बन जाएगा। तो उस कंडीशन में वो इजीली एक्सपांड हो जाएगा एम्फाइसेमा में, ठीक है। सो इजीली अगर एक्सपांड हो जाएगा तो कंप्लायंस क्या है? हाई है। लेकिन उससे उल्टा ट्यूबरक्यूलोसिस में देयर इज इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जो लंग पेरेन्काइमा है उसमें जो इलास्टिक फाइबर्स है दे आर रिप्लेस बाय कोलेजन फाइबर्स। सो कोलेजन फाइबर वो स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर एक्सपांड नहीं होगा इजीली एंड लंग एक्सपांड नहीं होगा तो कंप्लायंस इज लो। सो फर्स्ट फैक्टर इज इलास्टिक फाइबर। सेकेंड इज एल्वेलर सरफेस टेंशन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, सो आई विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ, राइट। 2/3 ऑफ द लंग इलास्टिसिटी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। जितना सरफेस टेंशन, मतलब जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा है उतना वो इलास्टिक है, मतलब surfactant reduce करता है क्योंकि collapse the wall and that will gives elasticity to your lung, right? So this is a major factor for the lung elasticity. The other factor is lung volume. Lung is stiff and resist expansion at high lung volume. For example, at the end inspiratory phase यानी तुम मैक्सिमम जितना इंस्पायर कर सकते हो उतना करो, कर दिया, अभी और करो इंस्पिरेटरी एफर्ट और समझ में आया? मैक्सिमम जितना हो सके तुम इंस्पायर करते हो, उसके सिवा भी, उसके ऊपर भी और इंस्पिरेशन करना है। कैन यू डू इट? नो, राइट। एंड एट द एंड इंस्पिरेट मैक्सिमम जितना इंस्पायर करो उस टाइम पर तुम्हारा लंग वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, इट इज मोर। यानी लंग वॉल्यूम, अगेन आई रीड द सेंटेंस, लंग इज स्टिफ एंड रेजिस्ट एक्सपांशन एट हाई लंग वॉल्यूम। हाई लंग वॉल्यूम कब होता है? एट एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन पर, ठीक है। सो एट एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन the even a great inspiratory effort produce a small expansion of the lung and so the compliance क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आया? कंप्लायंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा एट
high lung volume. So at high lung volume, compliance is low, and at low lung volume, compliance is high. Clear? वैसे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट यहाँ पूछ रही हूं. अभी मुझे बताओ कि अगर पल्मोनरी इडीमा होगा, ठीक है, पल्मोनरी इडीमा होगा तो पल्मोनरी इडीमा में कंप्लायंस हाई होगा या लो होगा? लो. गुड, समझ में आ गई बात. ठीक है, एक्सपेंशन अगर नहीं होगा इजीली, इट मींस कंप्लायंस इज लो. करेक्ट? ठीक है. सो I'll read it out, the third factor, and that is pulmonary congestion. If the excess blood in the pulmonary capillaries, it mechanically opposes the expansion of the lung and decreases the compliance. Clear? pulmonary capillary में अगर बहुत ज्यादा blood होगा तो भी तो expansion उतना great नहीं हो पाएगा, तो compliance क्या हो गया? Decrease हो गया. So these are the factors within the lung itself. Now there are the factors which affects the chest wall also, because chest wall has an inherent tendency क्या होती है? Expand होने की, which is opposed by elasticity of the lung. So in the intact body, the compliance of the system is the resultant of springing out tendency of the chest wall versus the elasticity of the lung. The compliance in human measured clinically is thus the compliance of the whole system. ठीक है, तुम सिर्फ चेस्ट वॉल की नहीं मेजर कर सकते हो. जब तुम मेजर करते हो कंप्लायंस तो दोनों का तुम करते हो, लंग एंड चेस्ट वॉल दोनों का. ठीक है, सो कंप्लायंस इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ बोथ द चेस्ट वॉल एज वेल एज लंग अलोंग. लंग को अगर बाहर रख दोगे तो उसमें कोई कंप्लायंस होगा ही नहीं. समझ में आया? सो व्हेन यू मेजर अ कंप्लायंस, इट इज अ कंप्लायंस ऑफ अ होल सिस्टम. And the compliance is basically a static measure of the lung and the chest wall, thoracic cavity. पर जो थर्ड फैक्टर है जो पल्मोनरी वेंटिलेशन को अफेक्ट करता है, एयरवे रेजिस्टेंस, दैट इज अ डायनेमिक वन. राइट? So compliance is a static measure of the thoracic cavity, and the airway resistance is a dynamic one. This is a lung compliance diagram. पहले पढ़ लेती हूँ, नहीं तो पढ़ने में तुम लोग टाइम वेस्ट करोगे. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लंग कंप्लायंस डायग्राम आर डिटरमाइंड बाय द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स, एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू. इलास्टिक फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. द 1/3 इज ड्यू टू द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू इटसेल्फ, दैट इज इलास्टिन एंड कोलेजन, and 2/3 of the elastic forces caused by the surface tension of the fluid that lines the inside wall of the alveoli and the other lungs airspace. So majority of the compliance is due to the elastic force. इसीलिए यहाँ पर सिर्फ elastic force को discuss किया है, right? And this is a lung compliance diagram. Now what is this diagram shows? That it shows the change in a lung volume per change in a intrapleural pressure, right? So it shows the relation of lung volume and intrapleural pressure, right? अभी देखो तो intrapleural pressure as it decreases, lung volume increases. lung volume बढ़ रहा है. even at the given intrapleural pressure, lung volume बढ़ रहा है, whether it is inspiration or expiration, दोनों में lung volume बढ़ रहा है. जैसे नेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे. ठीक है, even at a given intrapleural pressure, given intrapleural pressure यानी फॉर एग्जाम्पल हम -5 लेते हैं. -5 के ऊपर देखो जो इंस्पिरेशन है उस टाइम पर लंग वॉल्यूम कितना है, एंड एक्सपिरेशन है उस टाइम पर लंग वॉल्यूम कितना है. ठीक है, यानी एट अ गिवन इंट्राप्लूरल प्रेशर द लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेटरी फेज एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज आर डिफरेंट. राइट? द इंस्पिरेटरी फेज or the inspiratory curve, it lag behind the expiratory curve. यानी lung volume inspiratory phase में कम है as compared to at the given intrapleural pressure when the lung is expiring. right? यानी तुम जब इंस्पिरेशन कर रहे हो तो -5 जब सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंट्राप्लूरल प्रेशर है, उस टाइम पर तुम्हारा लंग वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू एक्सपिरेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड
Hysteros. Hysteros means, in Greek word, it means I lag behind. I lag behind. यहाँ पर at a given intrapleural pressure, the inspiratory curve lag behind the expiratory curve. And that is why this loop, which is created in a graph, is also known as hysteresis loop. ठीक है, बुक में दिया गया होगा the name given hysteresis loop. So hysteros means I lag behind. I lag behind means at a given intrapleural pressure, inspiratory curve is lag behind the expiratory curve. Clear? अभी इसका रीजन बताओ, क्यों ऐसा होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पर लंग वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू एक्सपिरेटरी कर्व? क्यों ऐसा है? जो भी दिमाग में आए. ड्यू टू कंप्लायंस. वेरी गुड. और कंप्लायंस में मेजोरिटी द रीजन इज, कंप्लायंस का मेजर रीजन इज elasticity. Clear? It means at a given intrapleural pressure, -5 की हम बात करते हैं, तुम्हारे लंग एंड चेस्ट वॉल को क्या करना है? जो इलास्टिसिटी की वजह से रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके उसको एक्सपांड करना है. समझ में आया? ठीक है, तो उस टाइम पर लंग वॉल्यूम कम होगा, लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम पर सेम इंट्राप्लूरल प्रेशर में लंग एंड चेस्ट वॉल ऑलरेडी एक्सपेंडेड है. ठीक है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन पर लाना है. उसको उस टाइम पर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन टाइम दे डू नॉट हैव टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस. ठीक है, सो लंग वॉल्यूम उस टाइम पर ज्यादा होगा. इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ में आ गया? यस और नो? कंप्लायंस का. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अफेक्टिंग द लंग कंप्लायंस. दिस इज से पहले मैं दूसरी स्लाइड करूंगी. ये देखो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस. दिस इज अ कंप्लायंस कर्व, हिस्टेरेसिस लूप, राइट? तो एयर फिल्ड जो कर्व है उसको देखो. The arrow goes upward shows inspiration, arrow coming down shows expiration, right? Air filled, because our lung is air filled, alveoli contain air, right? So उस टाइम का लूप देखो. बट सोचो अगर उस एल्वियोलाई के अंदर हम पानी भर दें, पानी भर देते हैं, देयर इज नो एयर, तो क्या होगा? पानी भर देंगे तो क्या होगा? एल्वियोलाई के अंदर एयर नहीं है, हमने पानी भर दिया, तो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा. यस, देयर इज रिड्यूस इलास्टिक फोर्स. सरफेस टेंशन ही नहीं रहेगा ना. सरफेस टेंशन क्रिएट कहां पर होता है? एयर वाटर इंटरफेस पर. समझ में आया? एयर वाटर इंटरफेस पर. लेकिन यहाँ पर तो एयर है ही नहीं, पानी ही है, तो इट मीन्स कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा. एंड सरफेस टेंशन 2/3 ऑफ द इलास्टिसिटी क्रिएट करता है, तो 2/3 इलास्टिसिटी रहेगी ही नहीं. और इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, इट मीन्स मसल को इजीली एक्सपायर हो जाएगा. देयर इज नो रेजिस्टेंस. समझ में आ गई? ठीक है, सो सलाइन फिल्ड जो भी कर्व है अगर है तो दैट शिफ्ट टू लेफ्ट. एट अ गिवन इंट्राप्लूरल प्रेशर द लंग वॉल्यूम ड्रास्टिकली increases, right? So this is about the lung compliance. The last one is about the compliances जो मैंने डिस्कस नहीं किया, that is diseases. Diseases affecting lung compliance. जो पहले देख लो एम्फाइसीमा की फिगर जो मैंने बताई थी. हेल्दी एल्वियोलाई देखो, right? This is a alveolar sac which contain normal alveoli, and there is a septal tissues present between the alveoli. In emphysema, the air sacs are damaged. That septal tissue of the alveoli are damaged. ठीक है, तो alveoli sac कैसी बन गई, right?
So in emphysema increases the compliance of the lung because it destroys the alveolar surface septal tissue rich with elastic fibers that normally opposes the lung expansion. राइट तो इसीलिए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो इजीली एक्सपांड हो जाएगा. उससे उल्टा reduce in lung compliance. The lung compliance is reduced in pulmonary fibrosis. Fibrosis में क्या होता है? Elastic fibers and the collagen fibers are replaced by fibrous tissue. And fibrous tissue stretchable नहीं होते हैं, तो lung stretch नहीं होगा, यानी lung expand नहीं होगा. Lung expand नहीं होगा तो compliance is low. So lung compliance is low in fibrosis, pulmonary edema, disease of the chest wall like kyphosis, scoliosis, एंटेरोपोस्टियर जो कर्वेचर होता है अपना वर्टेब्रल कॉलम का, काइफोसिस, स्कोलियोसिस यानी लेटरल कर्वेचर इंक्रीज हो गया, एंड इवन इन द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स. राइट, नीचे डायग्राम देखो कि नॉर्मल जब है कंप्लायंस कर्व, ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल वाला बीच वाला ब्लैक, फाइब्रोसिस में दैट शिफ्ट टू राइट साइड एंड ड्यूरिंग एम्फाइसेमा दैट शिफ्ट टू लेफ्ट साइड. इज इट क्लियर? ठीक है. So this is about the compliance. Now coming to airway resistance, last factor which affects the pulmonary ventilation, that is airway resistance. Any question, any doubt in compliance? Any question, any doubt? सबको समझ में आ गया compliance? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसीलिए मैं धीरे धीरे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर होते तो फटाफट हो जाता. ठीक है, ओके. सो देयर इज नो डाउट. सो आई विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड फैक्टर एंड दैट इज एयरवे रेजिस्टेंस. नाउ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर मूव्स इन, सो दिस इज अ डायनेमिक मेजर ऑफ द लंग thoracic cage. जैसे कंप्लायंस स्टैटिक मेजर है, दिस इज अ डायनेमिक मेजर, एयरवे रेजिस्टेंस. सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर मूव्स इन और गोज आउट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द फ्लोइंग एयर मीट्स सम रेजिस्टेंस व्हिच इज नोन एज एयरवे रेजिस्टेंस. ठीक है, सो इट मींस एयरवे रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द एयर फ्लो एंड एयर फ्लो डिपेंड करता है ऑन अ प्रेशर चेंजेस. तो उसको तुम स्टैटिक कंडीशन में मेजर नहीं कर सकते. कंप्लायंस को क्या तुम स्टैटिक कंडीशन यानी तुम पेशेंट को बोलो या पर्सन को, नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि तुम पेशेंट को ही बोलो, हेल्दी पर्सन में भी कंप्लायंस मेजर कर सकते हो. तो तुम उसको इंस्पायर करने के लिए बोलो एंड फिर तुम उसकी कैपेसिटी और ये सब मेजर कर दो, टीएलसी, देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एवरीथिंग. सो दैट इज अ स्टैटिक मेजर, राइट. लेकिन इसमें तुम उसको इंस्पायर करने के, होल्ड करने के टाइम पर तुम नहीं मेजर कर सकते. तुम कब मेजर कर सकते हो? जब तो आइदर द पर्सन इज एक्सेलिंग, जब मूवमेंट में है उसी टाइम पर यू हैव टू मेजर दिस. दैट इज व्हाई दिस इज अ डायनेमिक मेजर, राइट. So during movement the flowing air meets some resistance which is known as airway resistance, that is resistance against airflow, right, is more intense in expiration even in a healthy person. कैसे मैं बताती हूँ बाद में, याद रखना. ठीक है, ओके. सो airway resistance is the relationship between the flow, pressure and resistance in regards to conducting airways. It is analogous to the relationship in the cardiovascular system. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हीमोडायनेमिक्स आई थिंक अभी शुरू नहीं हुआ है, कार्डियक मसल ही शुरू हो रहा है. ठीक है, तो हीमोडायनेमिक्स में ये तुम डिटेल में सीखोगे. हीमोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, इसी का रिलेशन है. लेकिन ये हीमोडायनेमिक्स में एयर फ्लो की जगह ब्लड फ्लो है, गैस प्रेशर की जगह फ्लूइड प्रेशर है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे की जगह रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर है. लेकिन है तो सेम चीज. उसको हाईलाइट करूंगी समझाने के लिए, राइट. सो एज पर ओम्स लॉ, एयर फ्लो इज डिपेंड ऑन, it means directly proportional to the pressure gradient and inversely proportional to the airway resistance. It means if the resistance is more, air flow decreases. वो तो सही है, ठीक है.
and pressure gradient, yani the air moves from higher pressure to lower pressure. Pressure gradient is a driving force for the air. So in a breathing cycle, at rest, the alveolar pressure is same at the atmospheric pressure. So there is no pressure difference. So there is no driving force. So there is no airflow. During inspiration, diaphragm contracts. So there is increase in a lung volume, decrease in alveolar pressure. So presence of pressure gradient, hence the airflow occurs. This is what happened at the time of inspiration, right, and expiration. When ये हमने already देख लिया है, when the intrapleural pressure at the time of inspiration, your intrapleural pressure decreases up to -6 millimeter of mercury from -2.5 millimeter at rest. ठीक है, रेस्ट के टाइम पर there is no